بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی میڈیکل اور ڈینٹل کالج کے داخلہ ٹیسٹ کا انعقاد۔ کراچی کی میڈیکل اور ڈینٹل کالج یونیورسٹیز کی 858 نشستوں کے لیے 12,000 سے زائد طلبہ امتحانی مرکز پہنچے۔ این ای ڈی یونیورسٹی میں بد انتظامی سے طلبہ رل گئے۔ تاخیر سے پہنچنے کے باعث کئی طلبہ پیپر دینے سے محروم رہے۔ والدین نے یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے احتجاج کیا، جس کے باعث بدترین ٹریفک جام رہا۔ مزید اس رپورٹ میں۔ کیٹ ٹیسٹ طلبہ کے لیے کڑا امتحان۔ یونیورسٹی کی بد انتظامی کے باعث ہزاروں طلبہ خوار ہو گئے۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالج یونیورسٹیز کی 858 نشستوں کے لیے 6,000 طلبہ این ای ڈی اور 6,846 طلبہ ٹیسٹ کے لیے امتحانی مراکز پہنچے۔ مجموعی طور پر 12,846 امیدوار امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ رہی۔ یونیورسٹی کا امتحانی مرکز طلبہ کے لیے وبال جان بن گیا۔ تاخیر سے پہنچنے کے باعث کئی طلبہ پرچہ نہ دے سکے۔ والدین نے بھی این ای ڈی گیٹ کے سامنے احتجاج کیا، جس کے باعث یونیورسٹی کے اطراف بدترین ٹریفک جام رہا۔ امتحان دینے کے بعد نکلنے والے طلبہ نے سارا غصہ این ای ڈی یونیورسٹی انتظامیہ پر نکال دیا۔ کہتے ہیں پیپر تو آسان تھا، لیکن یونیورسٹی میں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں تھا۔ گرمی میں پیپر دینا مشکل ہو گیا تھا۔ نارمل تھا پیپر، نہ زیادہ مشکل نہ زیادہ ایزی۔ انتظامات اندر تو بہت اچھے تھے، پر یہ باہر نکلنے کا انتظام یہ اچھا نہیں۔ انتظامات کا یہ ہے کہ تھوڑا بہتر ہو سکتا تھا۔ آئی تھنک انہیں تھوڑی سی لینینسی دینی چاہیے کہ پانی کی بوتلیں وغیرہ الاؤ نہیں کرتے، اندر جو پانی ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، باقی جو واش رومز وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ بہت برا ہے۔ ادھر این ای ڈی یونیورسٹی کے مقابلے ڈاؤ یونیورسٹی نے انتظامات بہتر ہونے کا دعویٰ کیا، تاہم طلبہ کے والدین مطمئن نہ دکھائی دیے۔ کہتے ہیں طلبہ سے جیولری اتروائی گئی اور اپنے پاس رکھنے کی ذمہ داری تک نہ لی۔ 7 بجے سے بچیاں لائنوں میں ہیں، 10 بجے جا کے انٹری ہوگی۔ آپ خود سوچیں کہ پوری رات کے جاگے ہوئے بچے جب 4 گھنٹے کی لائنوں میں لگ کر اور اندر جائیں گے تو وہ کیا پیپر دیں گے؟ جب وہ 3 گھنٹے کی لائن لگا کے پھر اتنی مشقت کے بعد وہ اندر پہنچتی ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے آپ اپنی جیولری نکالیں، ورنہ آپ جائیں جا کے اپنی امی کو دیکھ آئیں۔ آپ یہاں پہ آ کے دیکھیے رش کس کی امی ملتی ہیں، یہاں پہ کس کے ابو مل رہے ہیں، جبکہ فون بھی نہیں ہے۔ ایم ڈی کیٹ کا پیپر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کی خبریں بھی سامنے آئیں، جنہیں ڈاؤ یونیورسٹی نے جعلی قرار دے دیا۔ ترجمان کے مطابق پیپر لیک ہونا ممکن ہی نہیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فرحان خان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق نائب صدر آرٹس کونسل اور جی ایم پی ٹی وی کے اطہر وقار عظیم کا تعزیتی ریفرنس آرٹس کونسل میں تقریب جاری ہے۔ احمد شاہ خطاب کر رہے ہیں۔ مطلب ہی واز فلفل کہ وہ ہی واز سنگل چائلڈ، تو ان کے ساتھ ان کے جانے سے پہلے ایک کوالٹی ٹائم نادر کے ساتھ انہوں نے گزارا۔ تو ہمارا تو یہ ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک فارمیلٹی ہے اور یہ کوئی 4 دن کا غم ہے، یہ ایک سینٹیمنٹل سا ریلیشن شپ ہے اور یہ باقی رہے گا۔ باقی نادر، عمران، اختر بھائی کے ظاہر ہے جو پوری فیملی ہے، اور اختر بھائی انہی کے ساتھ ہم تعزیت کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت الفردوس میں اختر بھائی کو جگہ دے گا، آمین۔ مرکز کے سابق پروگرام مینیجر آصف انصاری صاحب سے گزارش کروں گی تشریف لائیں۔ آصف صاحب کے ساتھ میں نے بہت پروگرام کیے ہیں اور السلام علیکم۔ لوگ اچھے ہیں، بہت دل میں اتر جاتے ہیں، ایک خرابی ہے تو یہ بس کہ مر جاتے ہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہم کل تمہاری باری ہے۔ تو یہ اطہر وقار عظیم صاحب نے ہمیشہ بہت ہی مشکل قسم کے پروگرام کیے، اور جس زمانے میں وہ کرنٹ افیئرس کے پروڈیوسر تھے، اس زمانے میں بہت ہی مشکل دور تھا۔ اس میں ضیاء الحق کا دور بھی آیا، اور آپ کو پتہ ہے اس کے اندر
कैसे कैसे मतलब ये कि झूठ को सच और इसको सब सच को झूठ ये सब बना के पेश करना पड़ता था और किसी तरह से बचा के अपनी इज्जत भी बचानी थी। और अतहर साहब का एक क्रेडिट और भी है कि अतहर साहब ने PTV का पहला प्रोग्राम जो रूबरू के नाम से होता था, वो उसके कंपेयर थे, नाम याद आ रहा है किसी को जी, हाँ, अनवर हुसैन साहब उसके कंपेयर थे और वो क्या खूबसूरत प्रोग्राम था और किस तरह उसको डील करते थे। और उस ज़माने में ज़ियाउल हक के दौर में इस तरह के प्रोग्राम का लाइव जाना बहुत ही एक मुश्किल काम था। अतहर साहब ने स्पोर्ट्स के मैदान में भी बड़े कारनामे अंजाम दिए और स्पोर्ट्स की कवरेज में भी बड़ा नाम पैदा किया। आजकल जबकि बहुत सारे आपके पास इक्विपमेंट हैं और तमाम चीज़ें हैं और डिवाइसेस हैं, इसके बावजूद अगर आप उस दौर का उनका कोई प्रोग्राम उठा के देख लें तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई इसमें किसी चीज़ की कमी आपको महसूस हो रही है। वो इतने खूबसूरत कवरेज करते थे। जब उन्होंने जावेद मियाँदाद ने जब छक्का लगाया तो उस वक्त मैं कंट्रोल रूम में था और मैंने उसी वक्त हमारा एक प्रोग्राम जाता था 7 दिन, डेट वाइज इंसाइक्लोपीडिया होता था कि किस तारीख को क्या हुआ। तो उसमें मैंने उसके टाइटल में फौरी तौर पे वो छक्का उनका जावेद मियाँदाद का डाल दिया और वो तकरीबन 250 मरतबा तो वो चला होगा। तो अतहर साहब बहुत खूबियों के मालिक थे, हमारे जहद शख्सियत थे, हमारे सिफत शख्सियत थे और यकीनन जल्द या बदेर हम भी उनके पास होंगे। हम इंशाअल्लाह एक चैनल वहाँ खोलेंगे जिसमें हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके अलावा अतहर वक़ार अज़ीम जो थे, कोई अच्छा प्रोग्राम हो तो उसकी फौरी तौर पे एक तारीखी ख़त ज़रूर भेज देते थे। तो मेरे पास ऐसे 2-3 ख़त हैं जिसमें से सबसे जो अहम ख़त है वो है हमारा वो एक प्रोग्राम होता था, हमने किया था कायद-ए-आज़म की मज़ार पे खराज तहसीन, जिसमें कायद-ए-आज़म की मज़ार की जो विजिटर्स बुक्स थी उसके ऊपर उसके हवाले से हमने प्रोग्राम किया था कि किन किन लोगों ने दस्तखत किए, उन मुल्कों से पाकिस्तान के मरासिम कैसे हैं, वो आए कैसे हैं। और उसके बाद फिर ये कि उसमें उन्होंने जो उनकी अगर वीडियो मौजूद है तो वीडियो लगाई, नहीं तो तस्वीरें लगाई। और अगर वो लोग जिस ज़माने में विजिटर्स बुक नहीं रखी गई थी उसको हमने डॉन की लाइब्रेरी में 1 महीना बैठ के रिसर्च की और वो सारी चीज़ें निकाली। उसकी कंपेयर थी हमारे साथ खड़ी हुई। जब हमारे अपने अब्देवुत का सर लाकर कदम खत्मी मरतबत के ऊपर फेंका तो ये नहीं कहा कि मैंने अरब के बड़े पहलवान को मारा है, बल्कि आपने ये कह के फेंका कि मैंने कुफ्र का सर काट दिया है। जब खेमाए खत्मी मरतबत से बाहर निकले तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमईन ने अली के गिर्द हल्का कर लिया। साहिबान इल्म दानिश और बीनिश तशरीफ फरमा है, मुझे मकालमे में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही। अगर ये मुकाम महफूज हो गया तो मैं समझता हूँ कि आज की कॉन्फ्रेंस में यही पैगाम है जिसको आम करने की ज़रूरत होगी। अली जब खेमाए खत्मी मरतबत से बाहर निकले तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमईन अली के गिर्द हल्का करके खड़े हो गए। मुस्नद में ये मुकाम महफूज है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसे महफूज किया है और कहने लगे कि या अली, आप अमर इब्न अब्देवुद का सर तो ले आए, अमर इब्न अब्देवुद की ज़रा नहीं लाए। अली ने सर को झुका लिया। एक गोगा बुलंद हुआ और आवाज ये आई कि अरबों में सबसे कीमती ज़रा अमर इब्न अब्देवुद की ज़रा है। तो अली ने सर को बुलंद करके कहा, सुनो, मैंने कुफ्र का सर काटा है, कुफ्र को बरहना नहीं किया। अगर दामन इखलाक को हाथों में थाम लेंगे तो आप बुराई का सर काटेंगे, बुराई को आम नहीं करेंगे। नौजवानों को, तलबा को मेरा पैगाम यही है कि एंड्रॉयड पर उंगलियां थिरकाएं, लेकिन दामन इखलाक को अगर हाथ में थाम लेंगे
तो माशरे में रवादारी और हमाहंगी कायम होगी। आप उंगलियों को थिरकाते हुए बुराई को आम न करें, बल्कि बुराई के सर को काटने की जुस्तजू करें, कोशिश करें। जिस दिन माशरा इस मुकाम पर आकर क़याम करेगा, यकीनन माशरे के अंदर मजहबी रवादारी और हमाहंगी कायम हो जाएगी। दुआ यही है कि खुदावंद अली आला हमें साहिबा और मोहसिन अली ये सब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे और एक ही उनके कमरे एक ही जगह पे थे और हमारा दस्तूर ये था कि हम खाना एक साथ खाते थे। तो अक्सर उसमें अथर वक़ार अजीम भी शामिल हो जाते थे और उसके अलावा काफ़ी उनसे गपशप रहती थी और बहुत ही जॉली किस्म के आदमी थे और ड्रेसिंग में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। वो कोई सा भी ड्रेस पहन ले, इसको आप उर्दू में आप कहेंगे कि खुशबाज भी कहेंगे और जामा जेब भी कहेंगे। तो वो जामा जेब थे, यानी अगर वो लाल रंग की शर्ट पहन लेते थे या ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की, उन्हें कोई ये नहीं कह सकता था ये इन्हें सूट नहीं करती। तो मैं आखिर में उनके लिए दुआ करूँगा और ये उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जो लेटर अथर वक़ार अजीम साहब ने मुझे दिया था उसके अल्फाज इतने खूबसूरत थे और इतना अच्छा था कि मेरे पास जितने भी लेटर एप्रिसिएशन के थे उनमें वो सबसे अच्छा था। और उसमें डॉक्टर कुमार मीर का भी बड़ा क्रेडिट है कि इन्होंने मेरे साथ कुछ 5 बजे से रिकॉर्डिंग शुरू होती थी और वो सुबह ख़त्म होती थी, उसके बाद हम कहीं फारिग होते थे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अथर वक़ार अज़ीम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू। सुहेल हाशमी, फॉर्मर डायरेक्टर मार्केटिंग पाकिस्तान टेलीविजन, तशरीफ लाएं। क्विकली आ जाएं दौड़ते हुए सुहेल, बिकॉज टाइम इज़ शॉर्ट और ज़ाहिर है कि हर आदमी अथर साहब के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता है, बात करना चाहता है। तशरीफ लाएं। Shukriya, Huma. Thank you. Assalamu alaikum, everybody. Good to be here. Good to see all of you. It's very sad, मैं समझता हूँ कि वो बड़ी मेरे हिसाब से बड़ी जल्दी वो चले गए। लेकिन मैं कोई स्पोर्ट्स की बात नहीं करूँगा, मैं उनके स्टाइल की बात करूँगा, उनकी क्रिएटिविटी की बात करूँगा और मैं इस चीज़ की बात करूँगा कि हाउ ही मेड मी एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल फील। जब आप नए नए आते हैं दूर से तो यू नीड टू हैव फ्रेंड्स। So he was one of my first friends, PTV. Lateef Saab is one, and of course the amazing Zahir Khan Saab, again a very handsome uncle. Uncle मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मैं लोगों को बहुत पसंद करता हूँ ना, तो मैं उनको uncle बोलता हूँ। Uncle Yusuf, you know, Uncle Athar. Uncle Athar's style was absolutely amazing. He was the Cary Grant type, you know, बड़ी अच्छी तरह से आना, बैठना, that one look. And the shirts and the style and the grooming was absolutely. साबिक नायब सदर आर्ट्स काउंसिल ताहिर वक़ार अज़ीम के सिलसिले में ताज़ियती रेफरेंस आर्ट्स काउंसिल में जारी है, जबकि मजहबी रवादारी के उन्वान से सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस भी जारी है। साबिक नायब सदर आर्ट्स काउंसिल और BMG PTV ताहिर वक़ार अज़ीम की याद में ताज़ियती रेफरेंस जारी है। मज़ीद बात कर लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में और डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल शकील खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अथर अजीम जो कि साबिक नायब सदर आर्ट्स काउंसिल थे और GM PTV के तौर पे उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी थी, तो उनके हवाले से आज ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद आज यहाँ पर किया गया है। शकील खान साहब से आपकी बात कराते हैं। शकील खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। किसी की खुशी हो या किसी का गम हो, आर्ट्स काउंसिल हमेशा पेश रहता है। आज ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आर्ट्स काउंसिल इदारे से ज़्यादा एक कुनबा है, एक ख़ानदान है। आर्ट्स काउंसिल के जितने भी मेंबरान हैं ये एक ख़ानदान है, एक कुनबा है। तो इस कुनबे की खुशी और गम दोनों हमारे हैं। हम इनकी खुशियों में भी शाद शरीक होते हैं और इनके गमों में भी शाद शरीक होते हैं। और अथर वक़ार अज़ीम साहब के तो जिनका आपने जिक्र किया,
वो पीटीवी के जनरल मैनेजर और डायरेक्टर तो थे ही, लेकिन साथ साथ 4 साल वो आर्ट्स काउंसिल के नायब सदर रहे, गवर्निंग बॉडी के कई साल मेंबर रहे और हमारे साथ रहने वाले एक ऐसे खुश शक्ल, खुश मिजाज और खुश मिजाज इंसान थे वो, कि जिन्होंने पाकिस्तान में करंट अफेयर्स पर और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पर जितना काम किया है, और जो पहला काम करने वाला पूरी दुनिया में पाकिस्तान को करंट अफेयर्स को मुतारिफ कराने वाला, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को मुतारिफ कराने वाले, वो अतहर वक़ार अज़ीम साहब थे। अतहर वक़ार अज़ीम की खिदमत सिर्फ पीटीवी नहीं बल्कि पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल्स जो आए उन्होंने भी अतहर वक़ार अज़ीम ने बेशुमार खिदमत अंजाम दी, और अतहर वक़ार अज़ीम का नाम पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के बड़े नामों में से है और हमेशा बड़े नामों के हिसाब से वो पुकारा जाएगा, बड़े नामों के हिसाब से पुकारा जाएगा। शकील खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अतहर वक़ार अज़ीम के हवाले से आज यहाँ पर जो है ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें समाजी शख्सियात और फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात जो हैं उन्होंने शिरकत की है। जी, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी पख्तून कल्चर डे जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। साहिल पर बड़ी तादाद में पश्तो ज़बान बोलने वाले जमा स्वात कौमी इत्तेहाद के रहनुमा कहते हैं कि सिंध अमन की धरती है, जहां हम आज़ादी से अपने सकाफती दिन मना रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं मीर केरी, उससे बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी पख्तून कल्चरल डे इंतहाई जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो पख्तून आबादी है, पख्तून लोग हैं, वो अपना जो सकाफती दिन है वो इंतहाई जोश व जज्बे से मना रहे हैं। यहाँ पर रक्स भी हो रहा है, उनका जो सकाफती टेबलोज है वो भी पेश किए जा रहे हैं। सकाफती लिबास में मलबूस यहाँ पर जो शुरका हैं वो अपनी सकाफती दिन को इंतहाई प्यार और मोहब्बत से मना रहे हैं, क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जिसमें कई जो कौमें आबाद हैं वो हर साल अपनी अपनी जो सकाफती दिन है वो मनाती है। यहाँ पर आज जो है कराची में सीयू पर इसका एहतमाम किया गया है, साहिल समंदर पर एहतमाम किया गया है, जहाँ पर कुछ ही देर में अवामी नेशनल पार्टी के जो रहनुमा हैं एमल वली खान वो भी पहुँचेंगे, जिसके हवाले से यहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। सवात कौमी इत्तेहाद की जो क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे। एमल वली खान भी आ रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे कराची के अवाम को, कितनी खुशी हो रही है अपने सकाफत दिन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहजादे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का और सिंध के सूफी दर्दी के शहर के सिंध वासियों का, कि हम आज सिंध की धरती पर खड़ा होकर और आज़ादी से अपना पख्तून रिवायत के मुताबिक अपना कल्चर डे मना रहे हैं। तो इसमें तमाम पार्टियों के, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हैं, नून से भी है, ते से भी है, पी से भी है, पीपीपी से भी है और हर पार्टी से हैं, क्योंकि ये पख्तून कल्चर डे है, ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। हम पख्तून सारे इकट्ठे हुए हैं। स्वात कौमी इत्तेहाद हमारी कौम की तंजीम है, हमारी मेट्रोल बनारस की, हमारे केमाड़ी के तकरीबन जितने स्वात कौमी इत्तेहाद के मशरान हैं सारे हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम पख्तून ममन बरादरी हर कौम के पख्तून कल्चर डे में के है, तो क्या क्या सकाफत है पख्तून आबादी के, पश्तून लोगों की क्या सकाफतें खास खास चीज़ें? सकाफतें तो किसी से ढकी छुपी नहीं है ना। पख्तूनों की सकाफत बिल्कुल एक आईना है, बिल्कुल साफ़ आईना है, आईने की तरह साफ़ है। हमारा काम जो है वो हमारा पख्तून कल्चर, सबसे पहले हमारा लिबास है, लिबास के बाद हमारा राजीनामे, जरगे और पख्तून कल्चर के मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमारे पख्तून की, ऐसे एक रिवायत है पख्तून की कि वो हम बयान नहीं कर सकते। ये हमें अपने फैमिली से, बाप दादा से मिलती हुई आ रही है और हम उस पर चलते हुए आ रहे हैं। तो ये कोई किताब में लिखा हुआ हमें नहीं मिलता, ये हम सीखते हैं अपने वालिद से, अपने चाचा से, अपने दादा से। तो इस तरह हमें मिलता हुआ आ रहा है कल्चर, तो उस पर हम चलते आ रहे हैं। जिस तरह हमारे बाप ने किया, दादे ने किया, तो इसी तरह हम चलते हुए आ रहे हैं। देखिए जी, बिल्कुल आज जो है मुल्क भर में पख्तून सकाफती दिन मनाया जा रहा है। पख्तून सकाफती दिन आज कराची में भी उसी तरह से जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है, जिसमें जो मुख्तलिफ सियासी तंजीमें हैं उनके कारकुनान शामिल है। पख्तून आबादी की बड़ी तादाद से जो है रैली में शरीक है। जो रैली अभी जो कुछ ही देर में एक बड़ी रैली जो है कराची, एक बड़ी रैली जो है एयरपोर्ट से निकलेगी, जो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगी और एक जलसे की सूरत में जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर इख्तिताम होगा इसका। जी, शहर में स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं सलमान सलीम से, बताइएगा।
بالکل اس وقت ہم غریب آباد کے اس مقام پہ موجود ہیں جہاں پر شریف آباد پولیس کی جانب سے سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے. سنیپ چیکنگ کا بنیادی مقصد کیا ہے اور کتنے پوائنٹس کے اوپر سنیپ چیکنگ کی جا رہی ہے اس وقت شریف آباد پولیس کی جانب سے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ SHO شریف آباد یوسف مہر موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. یوسف صاحب بہت شکریہ. سنیپ چیکنگ کا بنیادی مقصد کیا ہے اور یہ بھی بتائیے گا ساتھ کہ سنیپ چیکنگ سے کیا کامیابی حاصل ہوتی ہے؟ السلام علیکم. سنیپ چیکنگ جو ہے تقریباً ہر گھنٹے کے بعد ایک پوائنٹ چینج کیا جاتا ہے اور یہ جناب SHP صاحب کی طرف ذیشان صدیقی صاحب کی طرف سے یہ ہمیں بیریل ملے ہوئے ہیں. ان بیریل سے بھی کافی فرق پڑ رہا ہے اور تلاش ایپ کے ذریعے جس کو روکتے ہیں موٹر سائیکل والے یا گاڑی والے کو، تلاش ایپ کے ذریعے ان کو بھی چیک کرتے ہیں اور اس سے کافی جو ہے کرائم میں کنٹرول کرنے میں سہولت ہو رہی ہے اور عوام کے تحفظ کے لیے ہم کھڑے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں آپ کے حدود میں جہاں پہ سنیپ چیکنگ آپ لوگ ایک ایک گھنٹے کے حساب سے کرتے ہیں؟ سر اب یہ ایک گھنٹہ پہلے ABLC پوائنٹ تھا، اس کے بعد یہ پوائنٹ ہے اور اس کے بعد ہم غریب آباد پوائنٹ پہ جائیں گے اور ریلوے پھاٹک کے پوائنٹ پہ 4 پوائنٹ ہے میرے پاس اور چاروں پوائنٹ پہ ایک ایک گھنٹے کی چیکنگ ہے اور اس سے کرائم میں کافی فرق پڑ رہا ہے اور خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم کے اوپر کنٹرول ہو رہا ہے. دیکھیں بالکل SHO شریف آباد ہمارے ساتھ موجود تھے. سنیپ چیکنگ ان پوائنٹس کے اوپر کی جاتی ہے جو ہاٹ اسپاٹ ہوتے ہیں، جہاں پر موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں ہوتی ہیں، موبائل فون چھیننے کی وارداتیں ہوتی ہیں. تاہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو سنیپ چیکنگ کے پوائنٹس ہیں ان کو تبدیل کیا جاتا ہے. جو ملزمان ہیں وہ اکثر جو ہے وہ مین روڈ کا سہارا لیتے ہیں فرار ہونے کے لیے. ساتھ ہی جو سنسان گلیاں ہوتی ہیں، سنسان مقامات ہوتے ہیں، وہاں پر شہریوں سے لوٹ مار کی وارداتیں کرتے ہیں اور ان وارداتوں کی روک تھام کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضلع وسطی پولیس بھی جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے اور کافی حد تک جو ہے وہ شہریوں کو ایک طریقے سے سپورٹ بھی دیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے. ساتھ ہی علاقائی پولیس کی ساتھ ساتھ جو 15 کی موبائلیں ہیں وہ بھی اس وقت علاقے کے اندر گشت پر مامور ہیں. جی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.